contact and the nature of the liquid and the surface in contact, angle of contact, Okay. temperature, कुछ factors, my dear. अगर temperature बढ़ेगा तो Yes, angle of sir. contact, yes, you getting it? Angle of contact बढ़ेगा, it will become liquid to obtuse, ये सब कुछ बताया मैंने. The angle of contact is independent of the tilt of the tube. L H is equal to L cos theta. वो वाला relation मैंने दिया था. Okay. Yes, sir. Okay. Students, we'll be going with capillary and capillarity, students. That concept I'll be picking it up, students. Okay. Capillary and capillarity, you consider. Before going for your concept of capillarity and capillary action, students. Let us understand how exactly the angle of contact changes due to the surface tension we consider. Surface tension we consider simply the force which acts between the surface and the liquid in contact we consider. Okay. Let us go for a concept related to shape of liquid drop. Students, we are trying to go for shape of a liquid drop on a solid surface, students. Okay. So shape of a liquid drop on a surface. Now, students, do keep in mind, suppose in case if I give you a surface, think as if this is a surface, and there is a liquid drop which has been placed onto it. This is the drop of the liquid, students. ये liquid drop है, students. ये liquid है. अभी ये पूरा liquid का weight center में होगा, center of gravity. लेकिन मैं assume कर रहा हूँ कि ये पूरा weight सोचो कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने point m ले लिया, molecule m. ये पूरा weight को मैंने यहाँ पे concentrate करवा दिया. Now somebody asks me, sir, what is the angle of contact over here? तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे sir, the angle which is formed by a tangent drawn. यानी यहाँ पे एक molecule है, तो एक मैंने tangent draw कर दिया. Angle formed by a tangent drawn at a point on the free surface of the liquid and with the wall of the container. तो ये क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया, थीटा. क्या इतना क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. All of you ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. अगर मैं कोई भी लिक्विड ड्रॉप लेता हूँ और लिक्विड ड्रॉप को मैंने सरफेस के ऊपर डाल दिया, सिंपल एग्जांपल है, तुम्हारे पास में ड्रॉपर होगा, इंक ड्रॉपर होता है. तो इंक ड्रॉप अगर सपोज तुमने सरफेस पे डाला या पानी उसी इंक ड्रॉपर के अंदर, वो ड्रॉपर के अंदर तुमने पानी भर के रखा है और फिर उसको एक ड्रॉप बूंद तुमने सरफेस पे डाल दिया, तो उसको कैसा होगा, कैसे दिखेगा? ग्लास के ऊपर रखोगे तो कैसा होगा? प्लास्टिक के ऊपर रखोगे तो पानी फैलना शुरू हो जाएगा. एंड नंबर, अगर तुमने ट्राई किया होगा तो तुम्हारे राइट नाउ आल्सो यू कैन ट्राई इट आउट. एंड नंबर, अगर सपोज तुमने कोई प्लास्टिक सरफेस लिया स्टूडेंट्स, एकदम पॉलिश प्लास्टिक सरफेस लो और उसके बाद तुमने पानी को ऐसा ड्रॉप कर रहा, तो पानी रहेगा नहीं, वो स्प्रेड हो जाएगा. कहाँ पे पानी रहेगा, कहाँ पे वो स्प्रेड हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. स्टूडेंट्स, व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस वी कंसीडर. तो कैसे करोगे? हाउ डू यू गो अबाउट विद दिस? तो मैंने क्या किया मालूम है? मैंने एक लिक्विड ड्रॉप लिया है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, एंड आई हैव ड्रॉन द एंगल ऑफ कांटेक्ट. नाउ व्हेन यू लुक इनटू इट, ये जो है तुम्हारा एरो हेड, ये जो दिखा रहा है ना ये स्टूडेंट्स, ये है द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, T वी कंसीडर. आई गेटिंग इट? अभी इसी T को मैं क्या कर रहा हूँ? रिजॉल्व कर रहा हूँ. आई गेटिंग इट? I'm trying to break this particular T into three components. But before going for it, I can try to split up this T into different components. Students, अभी components के हिसाब से सबसे पहले जो surface tension है किसके थ्रू है? किसका surface tension है? तो ये जो तुम देखोगे ना स्टूडेंट्स,
If in case if I happen to consider, यहाँ पे मैं जो मैंने ब्लू इंक दिखाया, तो ये सोचो ये है force due to surface tension between what? इसको मैं लेता हूँ T1. Students, please pay attention. ये है surface tension. T1, if I happen to consider, will be the force due to surface tension due to what? Can I say? Liquid or solid है? T1 क्या है? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. ये जो है ये force due to surface tension है due to what? Liquid and solid. ये जो तुम्हारा if in case if I happen to give you T2, तो ये क्या होगा? What exactly I consider this as? Anyone who can tell me? Instant one सर ये जो है force due to surface tension होगा, ये है force due to, यानी liquid और air के बीच में है. समझ में? देखो, this is what we consider liquid and air. लेकिन अगर suppose if in case if I happen to consider for T3, I getting it? Then in that case, what exactly T3 I can consider in this case? This is T3 is the force due to surface tension between air and solid. क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है ही नहीं. स्टूडेंट्स, क्या ये तीन फोर्सेस समझ में आया? मैंने लिखा हुआ है T, लेकिन स्टूडेंट्स अगेन आई एम टेलिंग यू, force due to surface tension is T into length in contact. I repeat, a liquid drop when placed on the surface of the liquid has some forces acting. अगर मैं ये फोर्स लेता हूं तो ये है force due to surface tension between liquid and solid. Liquid and solid. ये है between liquid and air और ये है air and solid. Is this clear, students? क्या इतना clear है? Then I'll move further. Yes, sir. Yes, sir. Otherwise Yes, इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते. We can't move further at all unless and until this part is clear. तो ये अगर किस क्लियर है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा क्लियर है, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे सर ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, इसको आप रिजॉल्व कर सकोगे? क्यों नहीं, हम रिजॉल्व कर सकते हैं. अगर सपोज मैं इसको रिजॉल्व करूं तो मुझे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे. एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा और दूसरा इसी का वर्टिकल हो जाएगा. ये जो थीटा वाला होगा इसको मैं लिखूंगा T2 cos थीटा और ये हो जाएगा T2 sin थीटा. T2 sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? मॉलिक्यूल का वेट को बैलेंस करेगा या ड्रॉप का वेट को बैलेंस करेगा. मैंने क्या अज्यूम किया था? पूरे ड्रॉप का वेट यहाँ पे एक्ट हो रहा है. नाउ इफ यू सी स्टूडेंट्स, ये बैलेंसिंग कंडीशन के लिए, दैट मींस फॉर इक्विलिब्रियम, ऑफ ड्रॉप, मैंने क्या किया है? इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है. वर्टिकल फोर्सेस नीचे वाले को बैलेंस कर रहा है, लेकिन वेट ऑफ द मॉलिक्यूल तो नेग्लिजिबल है, यानी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. हम ये दो फोर्सेस दी, तो यहाँ पे कितने तो फोर्सेस है सर? दो फोर्सेस है, यानी एक होगा T1 प्लस T2 cos थीटा. वो किसको बैलेंस कर रहा है? T3. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप. Yes, sir. Everyone, Yes, all sir. students who are into the meeting. Yes, please. sir. Rishi, is it clear? Yes, sir. Okay. Those who answer, Sujil, Daksha, Hitanshu. Daksha, is it clear? Khushi, yes, Khushi answered last time. Yeah, Khushi answered. Daksha, Khushi is also one who's coming into the game. Kunj clear, Om Shinde clear, Daksha clear, Yes, sir. Uday clear, Sumit Jha, Vibhari, I don't know about it. She stopped saying anything. अभी तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया. तो नाउ व्हाट आई डू, यू नो, मैं T2 cos थीटा इज इक्वल टू T3 माइनस T1. तो वो कहने से cos थीटा इज इक्वल टू T3 माइनस T1 अपॉन T2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला Yes. क्लियर? अभी Yes, अभी यहाँ से देखना स्टूडेंट्स, T3 माइनस T1 अपॉन T2 इफ आई हैव टू कंसीडर. नाउ सपोज अगर मैंने ये बोला स्टूडेंट्स, इफ T3 is greater than T1 स्टूडेंट्स, तो क्या होगा मुझे ये बताओ. चलो पहले ये बताता हूँ. I'll give you the That case. is acute.
wait a minute. Suppose अगर पहला केस में लेता हूँ, if T3 minus T1 is equal to T2 लेता हूँ, चलो मैं दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एग्रीड? Yes, sir. तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। थीटा क्या है? What is theta? What is theta, students? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसका मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 0, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि सर पूरा लिक्विड ऑलमोस्ट पैरेलल है, पूरा लिक्विड ऑलमोस्ट पैरेलल द सरफेस है। दैट मींस द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये समझ में आया स्टूडेंट्स तुम लोगों को? Yes, sir. प्लीज Yes, sir. लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियरली बताया कि सपोज तुमने ग्लास लिया है, ध्यान से सुनना, ग्लास लिया है, अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उसके अंदर पानी डाला है और वो पानी तुमने पिया। पीने के बाद में जब तुम्हारा ग्लास का सरफेस देखोगे तो यहाँ पे कुछ पानी वैसे रेस्ट करेगा, इट रेस्ट ऑन टू इट। तो वो जो रेस्ट कर रहा है ड्रॉप ऑफ वाटर, उसका मतलब क्या है? इट्स गेटिंग होल्डेड टू इट, यानी इट्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू सरफेस। इसके जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था? 0, तो यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे मैंने सरफेस हॉरिजॉन्टल रखा है, यहाँ पे सरफेस मैंने वर्टिकल रखा है। देखो यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल है, यानी हुआ क्या मालूम है? ये ये पानी का अगर मैं ड्रॉप लेता तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। और ये ट्राई करो, ये कंसेप्ट ट्राई करो। अगर शायद तुमने कोई प्लास्टिक का सरफेस लिया होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, अगर तुमने बहुत ही क्लीन प्लास्टिक लिया होगा और उसके ऊपर अगर पानी डालोगे ना तो पानी तुम्हें से स्प्रेड हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली स्प्रेड करना शुरू कर देगा। ये है तुम्हारा कंसेप्ट। यानी देखो इससे तुम्हें पता चलता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो सकता है। और यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या था? मैंने क्या बोला था? अ tangent drawn, suppose a tangent drawn at any point on the free surface of the liquid measured with the wall of a container inside the liquid for a given solid liquid pair, angle of contact वो 0 हो गया। Rupesh, is it clear? Rupesh, you look damn handsome. Rupesh, clear है? समझ में आ रहा है रुपेश? अरे हाँ यहाँ तो बोलो। He's just smiling only. Rupesh is just smiling. रुपेश पापा है घर पे? Can I speak to him? He's not replying at all. Okay, friends. Sir. हाँ बोलो। Sir, I have a doubt. How did we get the equation T3 minus T1 equal T2? From here I got, my dear. This So is that's no, this equation I'm trying to put a condition. These are the different conditions. If I say that the force due to surface tension between these two is exactly equal, then how does the water behave? okay. Yes, sir. We assumed that theta is 0 in this case. Yes. That means assuming means if the forces are balanced in this case, then how can we assume that the liquid spreads? Or somebody asks you कि अगर liquid spread होगा तो what is the condition? Then T3 minus T1 will be equal to T2. So these are the cases, different cases we can consider how does the behavior of liquid drop will. Yes, sir. Now suppose if I happen to go for the next part of it, listen carefully for the second case. अगर मैं second case लेता हूँ students, listen carefully. Second case में अगर suppose मैंने ये ले लिया, suppose अगर मैंने ये जो है T3 minus T1 को students, if I take it greater than T2, तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा? रेशियो क्या होगा? सर T3 minus T1 upon T2 will be greater than 1. Therefore, cos theta will be greater than 1. If cos theta will be greater than 1, that means what exactly the value of theta will be? So what will be the value of this will be? Is it possible cos theta greater than 1? Cos of which angle is 1? Cos of 0 is 1. There is no value of cos of theta greater than 1. So this is impossible. This cannot happen. उसका मतलब students, T3 minus T1 difference between these two forces cannot be greater than T2.
the force exerted by air solid minus the force exerted by liquid and solid, the difference of the two forces can never be greater than the force exerted by liquid and air. If this takes place, cos theta is greater than 1, and this is practically impossible. So you cannot have the ratio to be greater than 1. That means T3 minus T1 can never be greater than T2. Is this clear, students? This is practically impossible. Agreed, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Third sir. case. Third case. अगर suppose मैंने बोला if T3 is greater than T1. Agreed? सिर्फ T3 is greater than T1. T3 greater than T1. सिर्फ उतना ही दिया. उसका मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? जल्दी से बताओ. पॉजिटिव होगा. तो मुझे cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? ये तो ग्रेटर है, नीचे तो T2 है, यानी ये पॉजिटिव है, नीचे कुछ भी वैल्यू होने दो ना, ये तो इंटर जी होगा, इंटर जी इट्स अ फोर्स. तो ये आंसर क्या होगा? cos थीटा विल बी व्हाट? हाँ कि ना स्टूडेंट्स? So what is theta? Acute. क्या ये क्लियर हुआ? क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी स्टूडेंट्स अगर सपोज मैंने एयर सॉलिड का फोर्स ज्यादा दे दिया लिक्विड पे, तो हाउ डज माय लिक्विड विल बिहेव स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मेरा लिक्विड कैसे बिहेव होगा मालूम है? ध्यान से देखना. अगर यहाँ का फोर्स बढ़ गया ना, तो मेरा लिक्विड ऑटोमेटिकली अपना शेप चेंज कर लेगा. ऐसे ये फ्लैट होते जाएगा. तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले, अभी देखो मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट और कम हो गया, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट और कम हुआ. पैरेलल कभी होगा? पैरेलल कभी होगा? when T3 minus T1 is equal to T2. Are you trying to connect, students? What am I trying to give you? Is it clear with all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now suppose if I say if T3 is less than T1, तो क्या होगा? Fourth condition, fourth case. If T3 is T1, yes. यानी ये फोर्स कम है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में फोर्स ज्यादा है, तो तुम्हारा देखो तुम्हारा ड्रॉप ऐसा परफॉर्म होगा, फिर इस तरफ आना शुरू हो जाएगा फोर्स. देखो दिस इज एक्चुअली द फोर्स इन सरफेस टेंशन becoming obtuse. So now if T3 is less than T1, then what about my numerator? My numerator will be negative. Therefore, what is that? Cos theta will be negative. So theta will be greater than 90. And this what exactly it will be? Obtuse. Agreed. Angle of contact will be obtuse. Angle of contact will be acute. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो ये सारे केसेस है whenever you speak about shape of a liquid on a solid surface. So students जब भी इसको समझना हो ना, तो इसको ये मैंने लिखा है T, लेकिन स्टूडेंट्स एक्चुअली तुम इसको ये ऐसे भी कर सकते हो. ये देखो ये वापस हाउ टू अंडरस्टैंड. प्लीज when you go back to your revision or go back to your learning process, सीधा तुम्हें सरफेस बनाना है, कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप दिखाना है. यहाँ पे ये सोचो कि पूरा मॉलिक्यूल का वेट यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये थीटा हो गया, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर तुम देखोगे तो ये है फोर्स एक्सर्टेड. अगर तुम्हें फोर्स के हिसाब से लिखो ना, ये फॉर्मूला फोर्स के हिसाब से लिखो, ठीक है, जगह पे एफ डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. किसके बीच में सर? ये लिक्विड और एयर के बीच में. ये क्या है सर? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस और लिक्विड है, देखो ना सरफेस और लिक्विड दिखाई दे रहे हैं ना, तो सरफेस एंड लिक्विड यानी सॉलिड एंड लिक्विड. ये क्या है सर? यहाँ पे तो लिक्विड है नहीं, तो फोर्स ड्यू टू व्हाट? सॉलिड एंड एयर. अब ये थीटा है, तो इसी को रिजॉल्व करो इनटू टू कंपोनेंट्स, ये mg बैलेंस हो जाएगा. फिर देयर इज अ स्ट्रगल. अगर यहाँ का फोर्स बढ़ रहा है तो तुम्हारा लिक्विड फ्लैट होगा, अगर यहाँ का फोर्स है तो तुम्हारा लिक्विड बल्ज हो जाएगा. इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. क्या थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1? इट्स इम्पॉसिबल. तो ये सारे तुम्हारे फैक्टर्स हो गए फॉर इक्विलिब्रियम के लिए. एंड दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड शेप ऑफ मेनिस्कस कैन बी फॉर्म. यानी सोचो ये चैप्टर कहाँ था, कैसे था? सरफेस टेंशन जब भी शुरू किया था तो उसका थियरी क्या था? Free surface of a liquid behaves like an elastic membrane. उससे मैंने वाटर इनसेट के बारे में बताया, मूव करने के लिए तुम्हारा फिल्म स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से जा रहा है, वर्क डन के ऊपर से जा रहा है. सरफेस टेंशन को समझाने के लिए मैंने ब्रश का भी, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया, हॉट नीडल लिया, उसको सरफेस पे रखा तो टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन कम हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बिहेव करता है. तो ऑल दिस थिंग्स यू वेंट ऑन सेइंग इट, एंड नाउ इट्स फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रॉप.
Then also told you pressure on the concave side is greater than the convex side for the given meniscus. Is this clear to all of them? Yes, sir. Yes, who's this? Who Yes, said sir. hello? Somebody said hello. Vivek, you said hello? No, sir. Okay, fine. Can I erase this? Theta over here is greater than 90, so it's obtuse. Angle of contact, acute, obtuse. Students, क्या मैं erase कर सकता हूँ? No, sir, just 1 minute. Yeah. Can I erase now? Yes, sir. Okay, students. Next concept we speak about rise and fall in meniscus, जिसको हम बोलते हैं और capillary action or simply capillarity. It's an adjective. So students, अभी next concept हम लोग पढ़ेंगे rise and fall in meniscus कैसे होता है, capillary और capillary action concept. I don't know about it. अगर suppose if you recollect over here कि suppose अगर कभी भी blood test के लिए जाते हो, have you ever observed it? किसी का जब भी blood test होता है students, तो blood test के टाइम पे अगर जो blood का drop, they try to keep it on a glass slab. If you happen to see it very properly, अगर तुम्हें mark किया हो तो I don't know about it whether you know this. लेकिन still some students who are very wise they know it करके कि अगर तुम देखोगे तो कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में गए हो, वहाँ पे ब्लड सैंपल उन्होंने यानी इंस्टेंट तुम्हारा ब्लड ग्रुप अगर पहचानना हो तो भी, तो तुमने ब्लड का ड्रॉप वो क्या करते सैंपल लगते हैं ग्लास स्लैब पे, फिर एक पतला सा नैरो ट्यूब लेते और जैसे वो नैरो ट्यूब उसका पॉइंट के साथ में कॉन्टैक्ट तुरंत वो ब्लड ऊपर शूट हो जाता, यानी वो राइजिंग मेनिस्कस है, यानी वो ब्लड इट फॉर्म्स अ कॉन्केव मेनिस्कस। वैसे मर्क्यूरी ड्रॉप हो जाता है, तो हम ये बात करेंगे कि राइज एंड फॉल इन मेनिस्कस कैसे होता है।
ये जो राइज एंड फॉल इन मेनिस्कस होता है ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे होता है मालूम है? इट्स एक्चुअली इन अ bow of a capillary tube made up of glass. ग्लास से बना हुआ कैपिलरी ट्यूब है। बोर का मतलब इट्स अ वेरी थिन रेडियस वी कंसिडर। माइंड यू, ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, उसका थिकनेस बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल थिकनेस वी कंसिडर, इट्स अ वेरी थिन ट्यूब वी कंसिडर। तो हम उसके बारे में समझ रहे कैपिलरी एक्शन क्या होता है। लेकिन जब भी somebody is explaining you this rise and fall in meniscus, the person will try to draw a tube in form of a cylinder. Mind you, ये tube है, it will be very small in thickness. It can be thickness of your hair or just 2 or 3 hairs together मिला के उतना thickness होगा उसका। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो they will show you in form of a tube. अभी सोचिए ये मेरा कैपिलरी ट्यूब है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को, एक वेसल है जहां पे मैंने पानी रखा हुआ है, और वही वेसल को, वही कैपिलरी ट्यूब मैंने दूसरे वेसल में रखा है जहां पे मर्क्यूरी है। सो ओवर हियर इट्स वाटर एंड ओवर हियर इट्स मर्क्यूरी। नाउ व्हेन आई कीप इनटू वाटर, व्हाट एग्जैक्टली वी कंसीडर? देयर इज राइज इन मेनिस्कस स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे देयर विल बी राइज इन मेनिस्कस। ये तुम्हारा मेनिस्कस है, ये तुम्हारा सरफेस है, आई गेटिंग इट? और यहाँ पे राइज होगा, देयर वोंट बी एनी फॉल। तो रीजन क्या है? अगर वाटर कमिंग इन कांटेक्ट विद द ग्लास, व्हाई देयर इज राइज इन मेनिस्कस? वही अगर मर्क्यूरी कमिंग इन कांटेक्ट विद ग्लास, व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर? Will be fall in meniscus, mercury. Why there is fall? Why there is rise? हम ये समझ लेंगे students. We are trying to understand rise and fall in meniscus. So students, rise and fall in meniscus is simply because of the difference in pressure. Let us understand that अभी. To understand, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तो इसके बारे में बताना मुझे। एक पॉइंट में यहाँ पे ध्यान से सुनना, I'm taking this as point 1, point 2, point 3, point 4. सेम यहाँ पे होगा 3, 4, जो कंसेप्ट 3, 4 में हो रहा है, यहाँ पे अगर मैंने 5, 6 लिया ना, तो वो यहाँ पे भी सेम ही होगा स्टूडेंट्स। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। Exactly same thing I'm putting it over here. 1, 2, I'm considered over here. This is 1, I'm considered over here. This is 2, this is 3, and this is 4. First of all, is the statement clear? What are we learning, and are the two diagrams clear? Students, is the statement clear? Rise and fall in meniscus, and are the two diagram clear? तो तुम बोलोगे rise and fall in meniscus किसका भाई? तो मैंने बोला water in contact with glass and mercury in contact with glass. कहाँ पे? In a tube. What is the name of the tube? Capillary tube. That is called as the bore of the capillary tube. Is it of a very large radius or very small radius? Very small radius. So जैसे मैंने कैपिलरी ट्यूब एक पानी के टाइम बीकर के अंदर डाल दिया, तो there'll be rise in meniscus of water. वही अगर कैपिलरी ट्यूब को ध्यान से सुनना, मैंने मर्क्यूरी से भरा हुआ है और उसी को मैंने सपोज मर्क्यूरी ट्रफ में डाल दिया, तो there'll be fall in meniscus. तो ये राइज और फॉल क्यों हो रहा है, हम वो पढ़ रहे हैं, और वही हमें एक्सप्लेन करेगा कंसेप्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन एंड कैपिलैरिटी। जैसे 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 एग्जांपल्स शायद मोस्ट ऑफ दोस्त हु आर बायो स्टूडेंट्स दे मस्ट बी नोइंग इट, असेंट ऑफ सैप, है ना, या अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द शूट। स्टूडेंट्स वो क्या है? कैपिलरी एक्शन है कि नहीं है? स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट? सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होता है, मिनरल्स होता है, वो प्लांट्स को रूट, सॉइल से रूट में, रूट के थ्रू इट गोज इनटू द ब्रांच एंड देन इट गोज टू द लीव्स, यानी वो क्या है? कैपिलरी एक्शन ही तो है। लाइकवाइज अगर सपोज मैंने कोई इंक लिया है, इंक पेन लिया और मैंने इंक के नजदीक रहा, तो इट विल टेक अवे दैट पर्टिकुलर सा, it will take it away. For example, best example we consider is a wick, WICK, a wick of a spirit lamp. For example, दिया चला जाता है तो तेल का दिया बनाते हैं घर पे या गांव के अंदर, तो उसमें होता क्या है, एक कॉटन का विक बनाते हैं, थ्रेड कॉटन जैसा लेते हैं, उसका ममा विक बनाती है, और फिर उसको एक वेसल के अंदर रखते हैं जहाँ पे तेल होता है या घी रहता है, वो भी, तो उसको यहाँ पे अंदर डाल दिया। दिवाली के टाइम पे यू मेक दियाज इन दैट केस, तो विक में से पूरा असेंट ऑफ एंड देयर इज राइज इन द कैपिलरी एक्शन। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैपिलरी एक्शन, राइज इन द मेनिस्कस एंड फॉल।
फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर के अंदर लिक्विड को स्प्रेड होना, ऑफ कोर्स दैट्स कैपिलरी एक्शन वी कंसीडर, तो वी आर ट्राइंग टू गो फॉर दिस कैपिलरी एक्शन। अभी ये क्यों हो रहा है फर्स्ट केस में, तो लेट अस गो फॉर दिस। अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये जो सरफेस है ना मेरा, ये सरफेस जहाँ पे 0.3 लिखा है 0.4 लिखा है, तो ये सरफेस मेरा प्लेन है स्टूडेंट्स। ये सरफेस को अगर मैं प्लेन सरफेस कंसीडर करूँ तो क्या होगा, तुम बोलोगे सर प्रेशर एट 0.3 इज इक्वल टू प्रेशर एट 0.4, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, फिर मैं बोलो P1 इज इक्वल टू P3, क्या ये क्लियर हुआ? रीजन क्या है इसका? तो तुम बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दे आर एट द सेम ऑल्टीट्यूड्स। ऐसा थोड़ी कि ये तुमने हाइट माउंट एवरेस्ट पे 0.1 रखा है और ये सी लेवल पे रखा है, नहीं ना, ये प्रेशर एट 1, ये एयर ही है, तो P1 इज इक्वल टू P3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. If P3 is equal to P4, P1 is equal to P3, therefore can I say P1 is equal to P4? If 1 is equal to 2 and 1 is equal to, if 3 is equal to 4 and 1 is equal to 3, 1 is equal to 4. Agreed? Yes, sir. yes, sir. sir. अभी मुझे बताओ ये कौन सा मेनिस्कस है स्टूडेंट्स, ये कौन सा मेनिस्कस है, तुम क्या बोलोगे? कॉन्केव मेनिस्कस। Concave means ओके, कॉन्केव मेनिस्कस में मुझे बताओ ये 1 कौन सी साइड की तरफ है? ये कॉन्केव मेनिस्कस है तो 1 और ये 2, 1 कौन सा साइड है? तो बोलोगे कॉन्केव साइड, है ना? और ये कौन सा साइड है? कॉन्वेक्स साइड। तो प्रेशर किस तरफ ज्यादा होता? P1 is greater than P2. Pressure on the concave side is always greater than the pressure on the convex side. Is this clear, students? Yes, sir. लेकिन P1 को हमने क्या बता दिया था? इक्वल टू क्या बता दिया था? P1 is equal to what? P4. तो इसको कहने से P4 is greater than P2. अभी समझ में आया? अभी समझ में आया लिक्विड ऊपर क्यों जा रहा है? Oh, यानी सर P1 is greater than P2 and P1 is equal to P4. So you mean to say that the force exerted, the pressure exerted from this point, likewise exactly you said at 5 and 6, whatever happening with 3 and 4 same is, means over here also the pressure is more in comparison to this. That means of course the liquid from here and here will shoot, and that's how there'll be rise in meniscus. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Can you give an answer for this by yourself? This is for mercury in contracted glass. Come on, solve. Everybody solve and try to get the answer. I'll give you 2 minutes for this. Yes, everybody can answer. Has everybody done it? Can you give me the answer for this? There's 2 of them. Yes, Kanish. Kanish, can you answer? Can you speak out over here? Kanish, can you unmute and give an answer? Yes, sir. Bolo. Answer this sector. The way I explained you this, can you explain this part also? Sir, I understood the concave side and the convex side one. लेकिन ये वाला can you answer? ये वाला you can answer. Sir, in this the P2 will be greater than P1. And first you say is P3 and P4. Go step by step. P3 P4 के बीच में क्या relation होगा? क्या दोनों equal होगा? Yes, they both will be equal, sir. Why? What's the reason behind it? Because they are on the same surface. Seriously, the surface is plain. Plain Surface is plain. A plane surface. ये जो meniscus form हो रहा है वो end में हो रहा है, लेकिन ये जो ना ये beaker है,
बीकर के अंदर सरफेस थोड़ा सा लंबा है, so I can consider the plane surface. हाँ, अभी दूसरा 1 और 3 के बीच में क्या होगा? Is 1 and 3 are same? Yes, sir. क्यों? Reason? No. Atmospheric pressure. Absolutely correct. So if 3 is equal to 4 and 1 is equal to 3, so we're going to say P1 is equal to P4. Yes, sir. Okay, now further ahead. How will do it? Uh, then 2 is on the concave side. Absolutely correct. So which one is greater? P2 is greater than P1? Yes, sir. Reason what you say? Then P2 is greater than P4. Yes, because P1 is going to be P4. ये होगा pressure on the concave side is greater than the convex side. So P2 is greater than P4. Now if I say P2 is greater than P4, that means what's going to happen? The liquid will move in this direction as well as in this direction. So there will be fall in meniscus. And this will be rise in meniscus. Good. Friends, is it clear to all of you all? Yes, Yes. sir. Okay. Fine. Can I erase this? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Wait a minute, sir. Yeah. Can I erase, students? Yes, sir. Okay, students. Now we go for at equilibrium. At equilibrium, let us find out the relation for height of meniscus. At equilibrium, height of meniscus का हम mathematical relation निकालते हैं. And the formula for H is equal to, students, 2t cos theta upon r rho g. And students, ये जो height of the meniscus depends on the cos theta. Theta is the angle of contact, students. यहाँ पे theta है angle of contact. T क्या है? Surface tension, students. Surface tension जो liquid होगा उसका होगा. Agreed? R क्या है? Radius of bore of capillary tube. जो tube होगा उसका radius, students. Rho density of liquid. जिस liquid के अंदर हम लोग ने tube डाला है वो है density of liquid. ये सब सारे terms ध्यान में रखना. तो students formula क्या है? Height of meniscus at equilibrium is given by the formula 2t cos theta upon rho g. ये height of meniscus का मतलब क्या है students? ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट मैंने दिया कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यानी ये सोचना है
कि अगर सपोज मैंने मर्क्यूरी लिया हुआ है और मर्क्यूरी फॉर्म्स इन कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो सपोज तुमने मर्क्यूरी ग्लास में लिया है और मर्क्यूरी के अंदर एक शूट आउट होके रखा है और वहां पे इक्विलिब्रियम है, यानी अभी क्या हो रहा है, मर्क्यूरी ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मुझे इसका हाइट मेजर करना है फ्रॉम द सरफेस। तो हाउ डू यू गेट दैट आंसर? वैसे अगर ये मेनिस्कस कॉन्केव होता तो एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे तुम, तो वहां से तुम हाइट मेजर कर सकते हो। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ meniscus whenever the meniscus is at equilibrium. So at equilibrium for a given meniscus, okay, at equilibrium for a given meniscus, we are trying to get the formula h is equal to 2d cos theta upon rho g. Theta is the angle of contact, t is the surface tension of the liquid, r is the radius of the bore of the capillary tube, and rho is the density of the liquid. हम ये formula derive करने जा रहे हैं. Now can I go ahead with the derivation, students? Is it clear? स्टूडेंट समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या चीज डिराइव कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? Yes, sir. देखिए राइज एंड फॉल तो होगा, लेकिन अगर सपोज वही बोर ऑफ द ट्यूब अगर कैलिब्रेटेड है या उसके ऊपर ट्यूब के अंदर कैलिब्रेशन रखा है। सिंपल एग्जांपल, तुम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में पिपेट, यू नो व्हाट एग्जैक्टली पिपेट इज? ऐसा ऐसा होता है ना पिपेट, है ना, ऐसा होगा। और फिर यहाँ से तुम सक करते हो सोल्यूशन को, शायद टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया होगा कहाँ पे, और फिर वो लिक्विड राइज होता है, फिर ऊपर से तुम टैप करते हो तो तुम्हारा लिक्विड होल्ड करके रहता है। ट्राई टू गो ऑन टू, शायद अगर तुम जाओगे, अगर तुम यूट्यूब पे जाओगे स्टूडेंट्स, तो यूट्यूब के ऊपर तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रैक्टिकल्स डाउनलोड करो, सारे प्रैक्टिकल्स को। कोई भी स्टूडेंट स्मार्ट होता है ना, जो भी स्टूडेंट स्मार्ट होता है ना, वो क्या करता है पहले ही, क्योंकि ये ऑनलाइन का सेशन चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन का सेशन चलता है, तो वो पेन ड्राइव्स वगैरह लेके ही रहते हैं। वो जो भी बोर्ड रिलेटेड होता है कि चलो सारे प्रैक्टिकल्स के वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल बोर्ड में होते हैं, तो वो सारे डाउनलोड करके रख देते हैं, जब भी उनको देखना है तो पेन ड्राइव के ऊपर लिख के रखते हैं। तो जस्ट नाउ अभी अभी भी जो 2021 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, कितना कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारा डिवाइस के ऊपर है, तो हु नोज, डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। कभी कभार वो डिवाइस अगर आउट हो गया तो, डिस्टर्ब हो गया तो, बैकअप तुम्हारा है लेकिन पूरा बैकअप नहीं है, तो सेकंड बैकअप के लिए तुम एक जाओ करके यू ट्राई टू गो फॉर अ प्रिंटर, ट्राई टू गो फॉर समवेयर वेयर यू स्टोर द एंटायर इंफॉर्मेशन एंड बिकम हैंडी। तो वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी तुम करते हो, तो तुम्हारा अगर वो कैपिलरी पिपेट का है, वो तुम्हारा कैलिब्रेटेड होगा, तो यू कैन फाइंड आउट राइज एंड फॉल ऑफ द मेनिस्कस इजीली। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट में आता है, अगर तुम इसके एक्सपेरिमेंट देखो तो परफॉर्म इट इन दैट केस। तो हम फाइंड आउट कर रही है अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, हाउ टू गो अबाउट दैट, लिसन केयरफुली। तो मेरे क्या मालूम है, आई हैव टेकन अ ट्रफ, और उसी ट्रफ के अंदर मैंने डाल दिया है वो ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, एंड देयर इज वाटर इनसाइड इट। See the meniscus. Meniscus is concave. Which meniscus it is? Concave meniscus. ये कौन सा साइड होगा? कॉन्केव साइड। ये कौन सा साइड होगा? कॉन्वेक्स साइड। एंड देयर विल बी राइज इन द मेनिस्कस। लेकिन राइज के बाद में एट इक्विलिब्रियम आ गया, यानी आई वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मेनिस्कस। तो हाउ डू यू गेट दिस हाइट ऑफ मेनिस्कस? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। टू गेट दिस कांसेप्ट ऑफ हाइट ऑफ मेनिस्कस, मैंने क्या अज्यूम किया मालूम है? प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। वापस यहाँ पे मॉलिक्यूल एम अज्यूम किया मैंने, एग्रीड। वापस मैंने क्या कर दिया, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने बना दिया, एग्रीड। अगर मैंने रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब लिया, तो ये रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है, ये स्मॉल आ रहा है। ये अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा h हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हमें ये इसका फॉर्मूला चाहिए स्टूडेंट्स। अभी मैं पूछूं करके ये जो मॉलिक्यूल है, तो कहना है यहाँ पे कुछ फोर्सेस है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो इस तरफ जाएंगे, तो ये क्या होगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बाय द लिक्विड ऑन टू द मॉलिक्यूल। कहाँ पे ये मॉलिक्यूल? ऑन द फ्री सरफेस। इज इट इन कॉन्टैक्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर? यस। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्शन। This is action created by the molecules inside the liquid. लेकिन what is Newton's third law?
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, एक रिएक्शन फोर्स भी आ रहा है, वो शायद इस तरफ चला जाएगा टी डैश। ये कौन सा फोर्स होगा? रिएक्शन। ये रिएक्शन फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स है, एवरीबडी प्लीज, यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स है वो इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। तो अगर ये खींच रहे तो इनडायरेक्टली ये मॉलिक्यूल तो वॉल के साथ में है कि नहीं, तो इनडायरेक्टली वॉल को भी तो खींच रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें वॉल कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें कैपिलरी ट्यूब का वॉल कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहा है? तो स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स देयर इज सम फोर्स which is reacting to this particular action, equal in magnitude and opposite direction. तो ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स exerted by the molecule to the wall, onto the molecule in the directly opposite we consider. वो वाला मैंने रिएक्शन फोर्स ले लिया। यानी यहाँ पे क्या है सर? टी डैश विल बी टी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, they're equal in magnitude but they're opposite in direction. What are they? Equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। एक होगा टी और एक होगा टी डैश। मैग्नीट्यूड, देखो ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ टी डैश इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड विद इन द मॉडुलस साइन। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट? सबसे पहले any query onto this, any confusion, any kind of question, any kind of discrepancy, right now you stop me and ask before going further. Later on don't tell me ki sir what is this, what made you to write down this. तो सबसे पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे तो लिक्विड ऊपर नीचे जा रहा था। लेकिन अगर लिक्विड एक बैलेंसिंग कंडीशन पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया फॉर अ गिवन मेनिस्कस, तो हम उसका हाइट कैसे मेजर करेंगे? हाइट मेजर करने के लिए मैंने पहले फॉर्मूला दे दिया, अभी हम डिराइव करेंगे। ये क्यों दिया? क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे आप भी लैंडिंग अप टू अ करेक्ट आंसर, तो इसलिए मैंने रख दिया पहले। वही फिर मैंने कैपिलरी ट्यूब लिया, उसके अंदर फोर्सेस के बारे में बता दिए। एक फोर्स होगा एक्शन, दूसरा फोर्स होगा रिएक्शन, इक्वल मैग्नेट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, इक्विलिब्रियम में जाएगा। क्यों इक्विलिब्रियम जाएगा? क्योंकि मेनिस्कस रेस्ट पे है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये लेवल रेस्ट पे आ गया, ये इक्विलिब्रियम है। हमें करना क्या है? हाइट ऑफ मेनिस्कस एट इक्विलिब्रियम। क्या मैं आगे बढ़ूं अभी? Can I move ahead now? Yes, sir. अभी देखो प्लीज, now look at the meniscus. This is a molecule. ये टी लो, ये टी डैश लो, या ये टी लो, ये टी डैश लो, कुछ फर्क नहीं कितना। इसको मैंने टी डैश लिया, ये टी ले लिया, ये मेरा मॉलिक्यूल है। ओके, can I take this as a wall of the container? Yes. Can I take this as my angle of contact? Yes, it's a tangent only. Can I take this also theta? Yes sir, vertically opposite angle. Can I resolve this force unit surface tension into two components? Yes. One P cos theta, other one P sin theta. Where is this force acting? So it's acting on the free surface for a molecule in contact to the wall of a container. ये टी cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? सिर्फ टी cos थीटा, ये जो है ना मॉलिक्यूल, उसका वेट है, उसको बैलेंस कर रहा है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes. sir. अभी ध्यान से देखो, वेरी ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, एवरीबॉडी प्लीज ऑब्जर्व। अगर सपोज, यानी अगर ये तुम डायग्राम देखो ना, तो ये मैंने डायग्राम बनाया है एक्स वाई प्लेन, फ्रंट व्यू दिया है। क्या दिया है? फ्रंट व्यू। अगर सपोज इसी ट्यूब को अगर तुम्हारी नजर ऊपर रखोगे और ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? तो तुम्हें ऊपर तो सर्कल ही दिखाई देगा, टॉप व्यू है ना। उसमें से ये मॉलिक्यूल है mg, इसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है वो टी cos थीटा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, और ये टी sin थीटा इस तरफ दिखाई दे रहा है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ये टॉप व्यू हुआ। क्या ये टॉप व्यू क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. मेनिस्कस तो ऐसा फॉर्म हुआ ना, ये देखो ना मेनिस्कस ऐसा फॉर्म है, तो ये पूरा रिम तुम्हें क्या दिखाएगा, ये तो सर ये बाउंड्री है, किसका है, ट्यूब का बाउंड्री है, बोर का बाउंड्री है, और वो तो सर्कल दिखाई देगा। यानी यानी तुम बोलोगे सर, यानी इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था उसको एक फोर्स टी साइन थीटा इस तरफ जा रहा है, यानी एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट अगर यहाँ पे भी मॉलिक्यूल लूं तो उसको भी तो टी साइन थीटा इस तरफ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और लिक्विड तो वही है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल के मास तो एम ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होंगे। उसका मतलब ये तो फोर्स हो जाएंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे सर, हो गए, क्यों नहीं होंगे? तुरंत दूसरा स्टूडेंट बोलेगा सर अगर आपने टॉप व्यू दिया है और इसको सर्कल बना दिया है तो सर यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होगा, इसका भी टी साइन थीटा इस तरफ जाएगा, टी साइन थीटा इस तरफ जाएगा, तो ये भी तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी स्टूडेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स अगर मैं सरफेस पे दिखाओ, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक इनटू इट वेरी केयरफुली, ये सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ के, सरफेस के है, सरफेस के ऊपर है, तो उनका सबका टी साइन थीटा डायगोनली ऑपोजिट जो भी होगा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट नॉट डायगोनली, डायमेट्रिकली ऑपोजिट मॉलिक्यूल जो होगा सबका टी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? तो मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बचा कौन सा फोर्स, बचा कौन सा फोर्स? फिर बचा तो साइडवे फोर्स तो चला गया, तो बचा तो एक तो ऊपर का फोर्स है और इसी मॉलिक्यूल का नीचे का फोर्स, यानी इसका ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यानी सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस से बढ़ रहे हैं। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राइज एंड फॉल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग का कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम है। यानी हो क्या रहा है, यानी ये लिक्विड ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, दैट मीन्स देयरफॉर for equilibrium, can I say the net upward force in the upward direction is exactly equal to the net downward force? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. लिक्विड है ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऊपर के फोर्सेस किसको बैलेंस कर रहे हैं, नीचे। ऊपर के कौन से फोर्स लोगे सर, टी कॉस लोगे, लेकिन टी कॉस तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर है, सरफेस के ऊपर तो अनेक है। तो सर ऐसा करते हैं ना, टी कॉस थीटा थ्रू आउट द सर्कम्फरेंस, तो कहना ना टी कॉस थीटा थ्रू आउट द सर्कम्फरेंस ऑफ द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ये तुम्हारा बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है, तो 2 पाई आर हो जाएगा। ये देखो ये सारे फोर्स, यानी ये जो रेड इंक मैंने ऊपर लिया ना, ये क्या है, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये नेट फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ क्या जाएगा सर, उसका नेट फोर्स, यानी हर एक मॉलिक्यूल का, छोटा सा मॉलिक्यूल इसका वेट, ये पूरे लिक्विड का वेट नीचे की तरफ जाएगा, और वो कैपिटल एम में ले लूंगा। Small mg is weight of each molecule, capital Mg is the weight of the entire liquid downwards. क्या ये क्लियर हुआ अभी? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. T cos theta along the circumference of the liquid will make the total net force acting in the upward direction. The weight of the liquid molecules will act in the downward direction, but weight of each liquid molecule is very small, so the total weight of all the liquid molecules in the downward side is the capital Mg. The capital Mg is the weight of the liquid itself. Now from here onwards you have to use yourself to get the answer. चलो यहाँ से अभी ये तुम लेके, मैं नहीं बोलूंगा, चलो let's see, I'm giving you 2 minutes for this. यहाँ से ये फॉर्मूला लेके come on solve.
Yes, sir. Come on, answer. Sir is done. Sir, sir, mg equals to rho Vg. Okay, so T cos theta 2 pi r, mass is density into volume. And what is the volume of the liquid? You said it rho Vg, V is volume. तो V को कैसे लिखोगे? Sir, area into height. Very good. ये एरिया हो जाएगा और वो हाइट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर लिया ना तुमने, कॉलम को सिलेंडर ले लिया ना, एग्रीड. Yes, sir. और जी हाँ, वेरी गुड. अभी देखो कैंसिल करो, सब आ गया तुम्हारा आंसर. सी शी सो फास्ट. आर कैंसिल हो गया, एग्रीड. पाई कैंसिल हो गया, तो एच का फॉर्मूला क्या होगा? 2t cos थीटा अपॉन व्हाट? आर रो जी. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. All the students who are into this particular meeting, all of you all students, is the formula for height of the Yes, sir. meniscus clear with you all? So height of the meniscus given with the formula h is equal to 2t cos theta upon r rho g. तो तुम्हें करना क्या है? weight को क्या लिखोगे? density to volume. And if I look at the cylinder, suppose if I look at the tube is in top of the cylinder. अगर मैंने पूछा what is the volume? अगर मैंने पूछा what is the volume of the liquid inside, equal to volume of cylinder. What is the volume of the cylinder? Base area into height. जितना तुम्हारा height of meniscus होगा उतना. तो pi r square तो आ गया, into h आ गया. पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r rho g. यहाँ पे स्मॉल आर क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द कैपिलरी. बोर ऑफ द कैपिलरी. यानी बाकी सारे अगर पैरामीटर्स को मैं कांस्टेंट रखता हूं, देखो क्या वेरिएशन आ रहा है. देखा, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा. यानी इसके रिलेटेड जब तुम एमसीक्यूज करोगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं. h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, h is inversely proportional to radius, h is inversely proportional to rho, h is inversely proportional to g. अरे दो स्टूडेंट्स है, ध्यान से सुनना. दो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट. सेम सेटअप दिया है कैपिलरी ट्यूब का, सेम लिक्विड दिया है, सेम डेंसिटी दिया है, दोनों का एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम, लेकिन एक परफॉर्म कर रहा है अर्थ पे और दूसरा गया है मून पे. तो कहने से हाइट ऑफ मेनिस्कस डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आल्सो. यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g. g of moon is 1/6 the g of earth, 1.63 meters second square inverse. Does it depends on the angle of contact? Yes. बाकी सारे पैरामीटर्स में कांस्टेंट रखता हूं. दो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट. ध्यान से सुनना. इफ इन केस इफ आई हैपन टू कंसीडर रेडियस इज सेम, वी कंसीडर. आई गेटिंग इट? दो अलग लिक्विड्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है दोनों अलग कंटेनर मैंने लिए हैं. कंटेनर अलग अलग है, लिक्विड सेम है तो डेंसिटी सेम है, सरफेस टेंशन में, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो h1 by h2 is equal to cos theta 1 by cos theta 2. वो भी तुम कर सकते हो. या अगर सपोज मैंने लिक्विड टोटली चेंज कर दिया, सरफेस टेंशन भी चेंज कर दिया, तो तुम्हारा h क्या होगा? t1 cos theta 1 upon rho 1. h2 क्या होगा? t2 cos theta upon rho 2. उन दोनों का रेशियो. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आई एल गेटिंग इट? प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करोगे तभी. Yes, sir. Just one person is replying. What about the rest of them? What are you all doing? Are you all Yes, sleeping? sir. What in the afternoon hours? नींद आ रही है क्या? बाड़ा जो रे जो. Students, you're feeling sleepy or what? Sleepy students? नहीं ना? प्लीज समझ के करो तो प्रॉब्लम्स. इसके बाद में हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आना चाहिए उस टाइम पे. डोंट टेक माय हेल्प डूइंग दैट टाइम. ओके, दूसरी बात, जितना छोटा रेडियस उतना हाइट ज्यादा. अभी दो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट. एक ने रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब 1 मिलीमीटर लिया है, दूसरे ने 0.5 मिलीमीटर लिया है. तो कहाँ पे हाइट ज्यादा होगी? सेकंड केस में. ये हमेशा ध्यान में रखना. जिसका बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब छोटा हुआ, पतला हुआ, उतना मेनिस्कस राइज होगा. एग्रीड? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ पूरे को? तो स्टूडेंट यहाँ पे जब तुम लिखोगे फॉर्मूला तो ऐसे लिख सकते हो प्लीज. ठीक है, ना भैया. h1 by h2 is equal to t1 by t2 into cos theta 1 by cos theta 2 into r2 by r1 into rho 2 by rho 1 into g2 by g1. ये इनवर्स और ये डायरेक्ट, ऐसे दो रेशियोस. ये फॉर्मूला हो सकता है.
Can I erase this, students? Abhi? Yes, sir. So H is equal to, students, dou T cos theta upon R rho. Agreed? Okay, students. Is this diagram clear with all of you? क्या ये diagram समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने? For a given meniscus, okay, in equilibrium. What is small r? Radius of the bore of the capillary. What is theta? Angle of contact. ये क्या है? Action. ये क्या है? Reaction. ये dotted line क्या दिखा रहा है students? What does the dotted line speaks about? Meniscus जो फॉर्म हुआ है स्टूडेंट सरफेस के ऊपर, इसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. एक सर्कल फॉर्म करेगा. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? इमेजिनरी एक सर्कल है. आके ना. Yes, sir. So now if I consider, can I say this is actually capital R is a radius of the meniscus? ध्यान से सुनना everybody. Capital R क्या है? Radius of meniscus. Small r students क्या है? Radius of bore of capillary. Agreed? Is this clear? Now Yes, मेरा sir. question, मेरा question तुम लोगों को ध्यान से सुनना. Question सुनना student, ध्यान से सुनना. मैंने तुम्हें दिया है एक ट्यूब. Everybody be with me. I've given you a capillary tube जिसका height है 18 centimeter. Okay, and the meniscus is at a height of 12 centimeter. Agreed? Listen carefully, students. The capillary tube is of 18 centimeter. Meniscus at a height of 12 centimeter. मैंने क्या किया? इस capillary को मैंने तोड़ दिया है. Now I've got the capillary, same radius, same liquid, everything is same setup.
लेकिन अभी मैंने कैपिलरी को छोटा बना के 10 सेंटीमीटर बना दी। Length of the capillary was reduced from 18 to 10, 18 centimeter to 10 centimeter. My question to you, will the liquid column inside the bore, will it flow out? Will it flow in? ठीक नीचे ट्रफ है। Will it flow out? जो extra liquid होगा flow out होगा या वापस नीचे चला जाएगा flow in or remains on the surface? That means, will the water will flow out? Will the height of the meniscus will decrease? Or will there be any change in the height of the meniscus? It will flow out. It will flow out. Roxanne says flow out. Please post your answers. Hope the question is clear, all of you all. The tube is of height 18 centimeter. The liquid column was at 12 centimeter. When I cut the tube to 10 centimeter, will the water will flow out? Will the water will enter inside? Or will the water will remain over there itself? Flow out. Kunj कैसे है? कुंज कैसे है? कुंज ने C ऑप्शन दिया है, remains on the surface. कुंज, very good. कुंज बोलो क्यों? सर वो फ्लो आउट होगा तो परपेचुअल मोशन बन जाएगा। फ्लो आउट होगा तो सर वो फिर घूमते रहेगा। घूमते रहेगा। कौन घूमते रहेगा? लिक्विड सर। लिक्विड कहाँ से घूम? नहीं मतलब सर ऊपर ही आके वो बबल बन जाएगा। बबल मतलब लिक्विड कैसे बबल बनेगा मेरे भाई? लिक्विड तो लिक्विड है ना, बिल्कुल भी मतलब बबल आई एम सेइंग वो शेप बन जाएगा। शेप बन जाएगा, लेकिन वो तो यानी बाहर ही आएगा ना, कि वो शेप बन के उधर ही रहेगा, वैसे तो बोल रहा है। हाँ लेकिन वो शेप बनने के बाद में तो कोई से फोर्स बढ़ जाएगा। तो जैसे नल में से पानी टपकता है तो वैसे तो वो टपकेगा ना, तो वही तो फ्लो आउट हो गया। फिर एक्सेस लिक्विड जो कॉर्नर पे बनेगा वो बबल फॉर्म होगा, ड्रॉप फॉर्म होगा, बबल भी ड्रॉप फॉर्म होगा, तो गिर जाएगा वो तो। हाँ यस, एनीवन? ऋषि, आर यू देयर? ऋषि, आंसर। ऋषि, व्हाट इज योर आंसर? यस, ओम शिंदे, any answer? Rishi, unmute yourself. Acha, he's posting it. Very good. Rishi is posting it. Uday, what is your answer? Vibhari. Vibhavari. तो आंसर तो बोल, भले तो अनम्यूट नहीं हो सकता, आंसर तो बोल। रिवीजन लेक्चर्स में तो अच्छे खासे आंसर्स आ रहा है तेरा। वहां पे किसी को इम्प्रेस करना होता है ना, बाकी बॉय। So the answer will be the water will not flow out. Not even will drop. The water will remain over there itself only. पूछो क्यों? रीजन क्या होगा? Everybody? उसका देखो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे शुरू कर दिया। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम बना उसके अंदर मैंने क्या बताया था? रेडियस ऑफ द मेनिस्कस ही बताया ना, बोर ऑफ द कैपिलरी टू बी स्मॉल आर। अभी स्टूडेंट्स मैं ये बताऊं, अगर ये थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा? हाँ स्टूडेंट्स, वापस बता दो। ये मेनिस्कस, अभी ये डायग्राम बड़ा बना रहा हूं, ये थीटा होगा, एग्रीड? ये ऐसे जा रहा है, ये 90, तो स्टूडेंट्स ये भी तो 90 होगा। ये थीटा होगा तो एग्जैक्टली 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। क्या समझ में आया डायग्राम? Yes, sir. अब मुझे बताओ स्टूडेंट, व्हाट इज cos थीटा इन दिस स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एग्रीड? Yes, sir. R क्या है? रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलर क्या है? रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। समझ में आ रहा है? अभी अभी ये इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे?
Can I substitute this cos theta in this equation? Yes. Therefore, h is equal to 2t. Instead of cos theta, can I say small r upon capital R? R rho g, r will get cancelled. Therefore, can I say h 2t rho g is constant? What is h? Means can I say height of meniscus? Height of meniscus is inversely proportional to what? Capital R क्या है? Capital R क्या है? Radius of meniscus. स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कोई स्टूडेंट स्मार्ट और वाइज होगा, वो बोलेगा उसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर आपने पहले इतना सा लिक्विड कॉलम लिया था तो उसका हमें पूरा इमेजिनरी स्फीयर ऐसे बन रहा है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। हाँ, सोचो कि मैंने ये हाइट ऑफ द ये 18 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना, ये 18 सेंटीमीटर। ओके, लिक्विड का हाइट 16 सेंटीमीटर है। ये सोचो अभी मैंने ट्यूब को काट दिया, मैंने 14 सेंटीमीटर में मैंने ट्यूब को कट कर दिया, तो एक्स्ट्रा वाटर होगा कि नहीं होगा? तो एक्स्ट्रा वाटर होगा क्या? बाहर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैंने किया क्या है, मैंने हाइट कम कर दिया है ट्यूब का। अगर हाइट कम हो जाता है ट्यूब का, एज पर दिस रिलेशन, क्या होगा? रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी जो लिक्विड का कर्वेचर इतना था, अभी वो कर्वेचर, लुक एट माय हैंड एवरीबॉडी, ये जो कर्वेचर पहले कैसे हुआ था, अभी देखो तुम्हारा कर्वेचर ऐसे हो जाएगा। पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया। पहले ऐसे था, अभी थोड़ा सा फ्लैट हो गया। यानी यही कर्वेचर तुम्हारा थोड़ा सा और फ्लैट हो जाएगा, and the liquid will not spill. That means the extra liquid will spread onto the surface without spilling a single drop. रेडियस क्या हो गया? रेडियस बढ़ गया। देखो पहले इसके इसमें R1 ये था, सेकंड केस में रेडियस हो गया। मेनिस्कस देखो, ये मोर कर्व, ये ज्यादा कर्व है, ये कम कर्व है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Any students, ये GE का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है कि if in case if a tube is cut, okay, to less than that, will the water will spill out? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं सर, the water will not spill out. Reason क्या होगा? Since the height of the meniscus is inversely proportional to the radius of the meniscus. Is it inversely proportional to the radius of the bore also? Yes, लेकिन यहाँ पे तो R cancel हो गया, यानी ये सारे constant आ गए। Okay. Next concept, one more concept. Please pay attention. When I asked you, is the height of the bore of the capillary tube is clear? Considered yes, but nobody was bothered to ask me this also. कि सर जब भी आपने ये पूरा डायग्राम बनाया तो आपने बोला था हाइट, हम लोग ने जब भी लिया तो हम लोग ने सिलेंडर का लिया था, लेकिन जब भी हम मेनिस्कस को देखते हैं और मेनिस्कस को ध्यान से देखना, उसका टैंजेंट ये होता है। आपने जो बीकर का सरफेस के हिसाब से हाइट लिया तो वो हाइट तो ये है, लेकिन सर जब भी मेनिस्कस कॉन्केव है तो सर यहाँ पे भी तो लिक्विड है, यहाँ पे भी तो लिक्विड है सर, उसका तो हाइट आपने कंसीडर किया नहीं है, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट हाइट थोड़ी होगा, नहीं है एग्जैक्ट हाइट। तो व्हाट इज द एडिशनल हाइट विद दिस? प्लस r/3। So, अगर किसी ने पूछा what is the actual height of meniscus in equilibrium for capillary action, actual height of meniscus in equilibrium for capillary action, then your answer will be h plus small r/3. This small r/3 is called correction. ये correction हम इसको add करते हैं। Small r क्या है? What is small r? Small r is actually the radius of bore of capillary. यानी स्टूडेंट्स अगर कभी कोई MCQ करते हो और वहां पे
तुम्हें करेक्ट हाइट दिया है एंड तुम्हें करेक्ट हाइट पूछा है, कंसिडर, अगर सपोज एमसीक्यू में लिखा होगा कंसिडरिंग करेक्शन वर्ड आ गया तो तुम्हें r/3 भी लेना जरूरी होगा, यानी जो h का फॉर्मूला तो है ही। h का फॉर्मूला क्या है, 2d cos थीटा अपॉन r जी। इसके साथ में तुम क्या ऐड करोगे, r/3, रेडियस तो बोर दिया होगा, डिवाइड बाय 3 करो, वो वैल्यू को ऐड करो उससे। क्योंकि ये पार्ट हम लोग ने लिया ही नहीं ना प्रूफ में मैंने कहाँ लिया, मैंने जब भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला, रुखसार को भी मैंने पूछा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रुखसार ने क्या बोला, मैंने भी वही बोला, बेस एरिया इनटू हाइट। तो पायर स्क्वायर हो गया भाई, तो सिलेंडर हो गया। देखो ना, ये पार्ट सिलेंडर है, ये पार्ट सिलेंडर, टैंजेंट ड्रॉ करके ये सिलेंडर हो गया। दिस इज द सिलेंडर पार्ट ऑफ इट। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ डू गेट दिस r/3? चलो, कैन आई कैन आई इरेज दिस? ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज के हिसाब से, you want, you can copy down, and I want anybody of you all to solve for this. I want anybody, and one who finishes, just let me know ये r/3 कहाँ से आता है। Get me the answer right now. I'm waiting for 2 minutes. Yes, anyone getting the answer? Coach Rishi, are you getting the answer? Will you say it?
जब भी रुखसार she said about derivation of this, or what exactly it is? हम लोग ने लिखा था surface tension P cos theta along the circumference is equal to she said it V rho g, यानी rho into volume into gravitational acceleration. अभी वॉल्यूम को देखोगे तो है क्या शुरू से, देखो ऐसा पार्ट, यानी ये है, यानी वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में तो ये पाई आर स्क्वायर एच तो आएगा ही, ये एक्चुअल हाइट तो ये है, लेकिन एक्चुअली एडिशन हाइट भी आएगी। अभी तुम इसको देखोगे ना स्टूडेंट, तो ये क्या है सर, ये भी तो सिलेंडर है, ये तुम्हारा टॉप सरफेस हुआ, लेकिन ये हेमिस्फीयर हुआ, ये तो पूरा एयर है, ये तो हवा है, लिक्विड ऐसा है ना, ये लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है। तो तुम क्या करोगे, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है स्टूडेंट्स, तो तुम क्या करोगे, ये तो वॉल्यूम है पाई स्क्वायर एच, ये क्या है सर, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कहाँ से रखना, वॉल्यूम में छोटा सिलेंडर है, ए बी सी डी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी सी डी, यानी बेस एरिया इनटू हाइट, है ना। उसमें से मैं क्या निकाल दूंगा तो मुझे वाटर का वॉल्यूम मिलेगा, सर हेमिस्फीयर को निकाल दो ना। क्या ये क्लियर हुआ, और वो इससे ऐड कर दो। स्टूडेंट को समझ में आया, ये जो है ये पूरा एक सिलेंडर हुआ, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, सब बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस ओनली, सर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल, तो ये पाई आर क्यूब हो गया। और ये क्या है, हेमिस्फीयर है, व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अभी इन दोनों का बीच में डिफरेंस निकाल दो, तो क्या आंसर होगा, पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, यानी क्या होगा 1 माइनस 2/3, यानी कितना होगा 1/3 पाई आर क्यूब। क्या इसको इससे ऐड कर दोगे, व्हाई नॉट, तो मेरा टोटल वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, अब ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। Yes, sir. Now देखो, now if I happen to consider this case, is that clear? So can I remove pi outside? ये pi और ये pi cancel हो गया, so P cos theta is equal to rho g we consider. Further ahead, can I remove r square outside? Yes, एक r square मैंने बाहर निकाल दिया, is that clear? यहाँ पे और एक r है, I getting it? I can remove in this case. I've removed r square outside. Okay, यहाँ पे तो r है ना, so rho g r square bracket में क्या आया, what exactly? Sir, it's r by 3 plus h. ये r इससे cancel हो गया, so what is my answer? What is my answer? Sir, h plus r by 3 is equal to what? P cos theta upon r rho g. Is this clear? और पहला फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, h is equal to, sorry 2 is also there ना, sorry 2 भी है, next one 2 is also there, 2 है, p है, cos theta, ये r इससे r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, rho g है, तो ये r by 3 plus h, तो उसमें पहले मैंने क्या लिखा था, h is equal to 2t cos theta अपॉन सिर्फ r rho g, तो देखो 2t cos theta अपॉन r rho g तो आ गया, लेकिन अभी तुम्हारा हाइट h है, h plus r by 3 है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. यानी अभी तुम्हारा करेक्शन आ गया साथ में, तो ये करेक्टेड है, यानी करेक्ट वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द मेनिस्कस क्या होगा, h नहीं होगा, h के साथ में एडिशनल हाइट r by 3। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? No, sir. क्या I है, have नहीं कुछ, हाँ बोलो sir, कुछ। वो pi r square into r क्या है? ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी देख, कुछ ये पूरा सिलेंडर है ना, तो उसमें से ये सिलेंडर का ये इसका वॉल्यूम बता, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बता, ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, Base area into height. तो पाई स्क्वायर इनटू h हो गया। Yes, sir. ये ऊपर वाला भी तो सिलेंडर है, हाँ उसका sir. उसका बेस एरिया क्या होगा, Pi r square. और ये हाइट क्या है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। पीछे तेरा मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है ना, ये मेनिस्कस है ना, ये देखना, ये पूरा मेनिस्कस है कि नहीं, ये खाली हाँ. स्पेस है कि नहीं? तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको पूरा कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ और अगर मैंने इसे ले लिया तो ये तेरा रेडियस ऑफ मेनिस्कस हो गया, Yes, sir. करेंगे तो उसको मैंने पाई आर क्यूब ले लिया है। हाँ हाँ. Agreed?
और उसमें से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया, हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2.3 पाई आर क्यूब को, तो मुझे ये शेडेड पार्ट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पार्ट। Yes, sir. स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? कैन आई इरेज दिस नाउ? ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के टाइम पे मुझे फॉर्मूला मत पूछो, ये अपने आप आना चाहिए तुम लोगों को। Now can I erase this, students? Yes. Hope you all are maintaining notes, huh, students? अगर नहीं मेंटेन करते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना, h is equal to 2t cos theta upon r rho g। अगर मैंने वाटर लिया, what exactly cos of 0 will be equal to 1, मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, h is equal to 2t r rho g, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वही वाटर मैंने उसी ट्यूब में रखा है स्टूडेंट्स, और उसका हाइट मैंने कट कर दिया, तो नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज l, तब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, l is equal to 2t upon capital R rho g, है ना? कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स, जिसके पहले हमने डिराइव किया था? Yes, sir. तो अभी देखो कहने से 2t by g rho g कांस्टेंट आ जाता है, कहने से h into small r is equal to length of the part of the tube which is existing, कट पार्ट को निकाल दिया into capital R, ये भी एक तुम्हारा फॉर्मूला। यानी ये हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये रेडियस ऑफ बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। अगर ये ट्यूब 18 सेंटीमीटर है, मैंने उसको काट के 14 सेंटीमीटर बनाया, तो ये L 14 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट्स। What is capital R is? Capital R is the radius of the meniscus. Is this relation also clear? Students, क्या ये रिलेशन क्लियर है सबको? ये सारे Yes, sir. लिख के रखना, h क्या है, स्मॉल r क्या है, l क्या है। अगर 18 सेंटीमीटर का लेंथ है, मैंने अगर काट के उसको 14 सेंटीमीटर बनाया, तो 14 सेंटीमीटर इज स्मॉलर। What is capital R? Capital R is not the radius for the bore, it's a radius for the meniscus. Inverse relation. This is the new height. New height, h dash. This is the original height, h. Can I erase this now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now please start solving your questions, huh, please. Questions, students, okay? Listen carefully, students. If the length of the अभी तो बता दिया मैंने। The question is, students, water rises to a height of 10 centimeters, students, in a certain capillary tube. Please pay attention, everybody, okay? Water rises to a height of 10 centimeter in a capillary tube. So H1 is given to us 10 centimeter in a capillary tube. The level of mercury in the same tube is depressed by 3.42. So this is the rise of water, and this is fall of mercury. It is depressed by 3.42 centimeter.
Okay. Compare the surface tension of water and mercury. Surface tension of water to surface tension of mercury. Compare. यानी मुझे रेशियो चाहिए, वाटर टू मर्क्यूरी का रेशियो चाहिए. For the contact angles, 0 degree to contact angle 135 respectively. क्या क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आया? दो कैपिलरी ट्यूब दिया है, एक में हाइट ऑफ द वाटर कॉलम राइजेस टू 10 सेंटीमीटर और दूसरे केस में मर्क्यूरी फॉल्स डाउन और डिप्रेसेस टू 3.42 सेंटीमीटर. Angle of contact of water is 0 and 135 for mercury. Find out the ratio of surface tension of water to surface tension of mercury. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Students, do speak it out. Yes or no? Yes, sir. इतना सब धीरे से एकदम सो रहे हैं कि क्या है? I don't understand that. I don't know. I don't know about it. But you should understand ना. कौन जो तेरे को समझना चाहिए. Yes, बोलो. अरे हर्ष पांडे got it. सर बोलो बोलो हर्ष बोलो. So nice. हर्ष बोलो. Very good. Harsh is smart now. Can you tell me कैसे सॉल्व करोगे हर्ष? ओके कैलकुलेशन कर रहे हैं. कौन सी? Get me the answer in decibels ना. Rishi has put forward the answer. No, my dear, it's incorrect, Rishi. Don't get me the answer properly. Harsh, come on, get me the answer already. 2 minutes over.
एब्सोल्युटली करेक्ट ऋषि। तो ऋषि पहले गलत क्यों दिया था? ऋषि बता कैसे करेगा? करेक्ट है ये। हर्ष पांडे, हर्ष पांडे आंसर बता। तू वेदांत भाई को क्या पूछ रहा है? Students are chatting among themselves to answer. This is what it is. है ना? Okay. Please students. See one thing students, मुझे ये बताओ जब ये क्वेश्चन आया तो why are you all struggling? मेरे को ये पता नहीं चलता है। चलो कुंज ने भी कुछ पूछा करके मैं कहेंगे नहीं रुखसार इट्स इनकरेक्ट। फॉर्मूला क्या है सर? एच का फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ओके ऋषि has given me the correct approach. इनकरेक्ट ओम शिंदे, गलत है ओम। अभी आंसर देखो फॉर्मूला ये है। अभी फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन। चलो ना अगर सपोज मैं वाटर लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो वाटर के अंदर राइज इन मेनिस्कस होगा कि ये थीटा एक्यूट है। एक्यूट होगा तो मेरा हाइट का आंसर किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। लेकिन अगर वही मैंने मर्क्यूरी लिया, अगर मैंने वाटर लिया तो मुझे एच पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मैंने मर्क्यूरी लिया स्टूडेंट्स, व्हाट इज थीटा? यस ओम शिंदे करेक्ट नाउ। थीटा क्या होगा सर? मर्क्यूरी लेंगे तो थीटा ऑप्टिस है। आई गिव यू द वैल्यू 135 डिग्रीज। तो अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो कॉस ऑफ थीटा विल बी नेगेटिव। तो मेरा हाइट क्या होगा? नेगेटिव में होगा ना स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव क्या दिखाता है? फॉल इन मेनिस्कस। पॉजिटिव का क्या मतलब है? जब भी मैंने बोला कि देयर इज फॉल इन मेनिस्कस तो तुम्हारा यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा? h1 is equal to 2t cos सर 0। इनवर्स हो जाएगा। यस लेकिन ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये h2 Negative. 2t cos of 135 अपॉन r रो, ये मर्क्यूरी ये वाटर इनटू g। लेकिन ये हाइट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा कि फॉल है। अभी तुम्हें चाहिए क्या? टेंशन को सब्जेक्ट बनाना है। आई गेट इट। सो नाउ सपोज इफ आई से टेंशन ऑफ वाटर, आंसर सुनना, whose tension of mercury? Students, rho and g are cancelling on this side. Tension depends on the height. So can I say it's direct proportional to height? So can I say height of water upon height of mercury? Density यहाँ पे जाएगा तो into density of water upon density of mercury. Agreed? Cos theta नीचे आ जाएगा inversely proportional, तो यहाँ पे होगा cos theta of water and cos theta of mercury. बाकी सारी टर्म्स क्या है? रो जी 2 कांस्टेंट है। नाउ कैन यू सॉल्व स्टूडेंट्स? यस सर। अभी देखो इजी हो गया। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी। व्हाट इज हाइट ऑफ वाटर दिया है 10 सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में रखो ना, नो चेंज। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना है? -3.42 रखो दोनों सेंटीमीटर में। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रखोगे? सीजीएस में रखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ये आना चाहिए स्टूडेंट्स 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज व्हाट अ स्टूडेंट शुड नो इट वेरी वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? You should know very clearly 13.6 we consider. Cos of theta for mercury. Cos of theta for mercury. Students, what is cos of theta for mercury? So cos of 135 upon cos of 0. Students, what is cos of 135 students? Cos of 135 क्या हो जाएगा students? बताओ। cos of 45. नेगेटिव। नेगेटिव में माइनस कॉस आएगा ना। 45। हाँ तो माइनस कॉस यानी क्या होगा? माइनस कॉस 45 नहीं होगा, -1/√2। तो देखो यानी √2 का वैल्यू क्या है? 0.707। तो ये होगा 10 अपॉन -3.42 into 1 upon 13.6 into cos of 35 is -1/√2, यानी 10 upon -3.42 into 1 upon 13.6, then again 1 upon √2 students 0.707। अब इसको तुम सॉल्व करो। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। Yes, you get the answer. The approximate ratio will be 0.1। स्टूडेंट्स क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस सर। What about the rest? कुंज अभी पता चला how to go about? कुंज where are you? तो क्या कर रहा है कुंज? जैसे क्या कर रहा है तू? और हर्ष पांडे क्या हुआ? तेरा फ्रेंड वेदांत क्या कर रहा है? 2 मिनट बोल रहा था और उसने पूरा लेक्चर खत्म कर दिया। हाँ हर्ष पांडे, आर यू देयर? अनम्यूट करो। ओके स्टूडेंट्स, कैन आई इरेज द स्टूडेंट्स? क्या मैं इरेज कर सकता हूँ?
Yes, sir. Okay, students. Now we go for the next concept is viscosity, students. Okay. This is the last part of the chapter, and that will be the end of your entire chapter, properties of matter. Okay. ये हो जाएगा. Now, can you tell me, students, what exactly mean by the term viscosity? Anybody? Yes, students. Anyone? Can you explain what exactly mean by the term viscosity? Friction between layers of liquids. Absolutely correct. Harsh Pandey, why did you go out? Now you're coming into it. Yes, Harsh. Network issue. Very good. Okay, students. Viscosity is, as I've said, it's a friction between fluid layers, students. जैसे फ्रिक्शन होता है ना सॉलिड सर्फेसेस के बीच में, वैसे लिक्विड के बीच में भी फ्रिक्शन होता है. अभी फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू स्टूडेंट्स, कैन यू से इज वाटर हाईली विस्कस, या इफ आई से ऑयल, इज ऑयल हाईली विस्कस? व्हिच वन इज Oil. मोर? यानी व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस विल कम अक्रॉस? मुझे बताओ डिफरेंस क्या होगा दोनों में? क्या डिफरेंस क्या है? Sir, how smoothly they flow. What are you saying? Sir, the measure of resistance. Measure of Resistance. resistance. Of course, resistance is there, but can I say if I speak about the fluid flow, then the fluid flow for non-viscous fluids, will it be more of streamline or will be more of turbulent? मुझे बताओ, अगर मैंने ऑयल का फ्लो लिया और मैंने पानी का फ्लो लिया, तो तुम्हें कौन सा ज्यादा स्ट्रीमलाइन मिलेगा और कौन सा ज्यादा टर्बुलेंट? Sir, water will be more Water streamlined. will be streamlined. Water will be streamlined, oil will be turbulent. Yes, sir. Yes, sir. My dear, water अगर streamline होगा in that case, then that depends on the curvature of the tube, है ना? Depends on the diameter of the tube we consider. So we can vary in that case. यहाँ पे तुम्हारा जो friction है ना layers in between के बीच में, that actually speaks about the drag, that speaks about the viscosity part of it, that speaks about the difference between the velocities of the two layers. यानी जब भी हम विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये है क्या? ये एक्चुअली देयर इज एन अपोजिंग फोर्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लेयर्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये एक लिक्विड लेयर लिया स्टूडेंट्स और ये दूसरा लिक्विड लेयर लिया, अभी ये सोचो कि अगर ये पानी का बहाव जा रहा है,
think as if this is a stream of water. Okay, stream of water है और उसी stream of water के ऊपर तुमने एक wooden plank रखा है. Everybody listen carefully. ये जो wooden plank है वो float कर रहा है. So students, what's going to happen? Will the wooden plank will move along with the same speed? Yes, See, sir. it's coming out of it. Yes. Will come out with same speed. लेकिन यहाँ पे पानी का क्या होगा? पानी का जो flow होगा students, that can be considered to be more of turbulence type. ठीक है, अगर तुम देखोगे ना plank of wood को, वो heave ज्यादा होगा. वही अगर तुमने flow लिया oil का students और एक oil का layer लिया, and if I say a plank of wood is placed on the oil, will that oil will get more turbulence? Or will No, that, sir. will that wooden plank will get more turbulence onto flow of oil, or will the wooden plank will get more turbulence on the water jet? Sir, in water surface, the turbulence will. Yes. यानी तुम ये बोल सकते हो कि water के अंदर turbulence का factor ज्यादा होगा as compared to that of oil. Oil highly viscous है, तो उसको तुम streamline कर सकते हो. Simple example my dear, अगर मामा ने suppose तुम्हारे लिए तेल डालने के लिए बैठा है, तुम मामा ने बोला कि आज किसी बात में तेल डालना है, कल छुट्टी है ना, it's fine enough. और वैसे भी तो वीडियो ऑन नहीं करते हो, तो तेली होके बैठोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयली मॉयली होके बैठोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो गर्ल्स जो चोटी करके बैठोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट केस तो मामा ने ऑयल डालना शुरू कर दिया. जैसे तुम्हारे सर पे ऑयल डालने लगा तुम हट गए, तो ऑयल का क्या होगा? एक्सट्रीम फ्लो होगा. दैट्स हाउ वी कंसीडर. फ्लो भी होगा तो स्ट्रीम होगा. लेकिन वैसे तो पानी का देखोगे तो पानी का नॉट नेसेसरीली इट्स गोइंग टू बी स्ट्रीमलाइन, इट कैन बी टर्बुलेंट. नाउ इट डिपेंड्स ऑन टू द टाइप ऑफ वाटर. अगर सिंपल एग्जांपल तुम आगे जाते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, तो वहां पे मैंने बोला था अगर तुम जैगवार के पाइप्स लोगे, हर्ष पांडे बोलते मैं भी ऑयल लगाता हूँ, क्या बात है. ओके, वेरी गुड. Sir, the size of hole from which water is coming out and all that also matters. एब्सोल्युटली करेक्ट. यानी जैगवार का पाइप लोगे और ऑर्डिनरी पाइप लोगे तो उसके अंदर तुम्हें डिफरेंस मिलेगा. डायमीटर ऑफ द ट्यूब के ऊपर है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर है. ये सारे टर्बुलेंस और स्ट्रीमलाइन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड. लेकिन अगर मैं क्लियरली बोलूं वाटर और ऑयल के बीच में, तो ऑयल के अंदर टर्बुलेंस कम होगा एज कंपेयर टू वाटर. हाँ, वाटर को तुम टर्बुलेंट बना सकते हो और उसको तुम स्ट्रीमलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. एक सिंपल एग्जांपल, सपोज अगर एक बड़ा सा बैंक ऑफ रिवर है, एक बड़ा सा, फॉर एग्जांपल तुम पवेल लेक चले गए, ठीक है, पवेल लेक चले गए, या तुम बुशी डैम के यहाँ पे चले गए लोनावला में. अगर तुम लोनावला में बुशी डैम पे चले गए, वहाँ पे इफ यू हैव गॉन ओवर देयर, तो बुशी डैम के स्टेप्स चढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में फिर एक पैरेलल वॉक के लिए पीपल आर नॉट अलाउड टू गो ओवर देयर. ओके, तो जैसे तुम अगर आगे की तरफ, बिकॉज़ आई हैव बीन ओवर देयर एंड आई हैव वॉक्ड ऑल द वे थ्रू, तो वी हैव, वो मतलब जैसे तुम चलोगे ना वहाँ पे, तो तुम्हें पूरा बुशी डैम का जितना भी पानी दिखाई दे रहा है वो पूरा स्टेशनरी, ऑलमोस्ट स्टिल और शांति से वो जा रहा है. यानी इट्स अ ह्यूज एरिया. एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर ड्रैग कम हो गया, ड्रैग ज्यादा हो गया. एरिया ज्यादा होने की वजह से ड्रैग ज्यादा हो गया, तो वो फ्लो एकदम स्ट्रीमलाइन वेरी स्लोली. लेकिन वही अगर सपोज नैरो हो गया, तो व्हाट्स गोना हैपन, द स्पीड ऑफ वाटर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. यानी अगर तुम नैरो स्ट्रीम लोगे तो स्पीड बढ़ गया, एरिया कम हो गया तो वहाँ पे स्पीड कम हो गया, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा. यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आ गया कंसेप्ट. तो जहां पे वेलोसिटी बढ़ेगा वहां पे टर्बुलेंस ही बढ़ जाएगा, और जहां पे वेलोसिटी कम होगा वहां पे टर्बुलेंस कम हो जाएगी. So when we speak about viscosity is nothing but students, it's simply a tangential opposing force, between any two layers of fluids, whenever there is a motion of liquid layer is considered. तो जब भी लिक्विड लेयर का मोशन हम कंसीडर करता है, तो एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लेयर्स, and that is what we call as viscosity. Is this clear, students, for viscosity? Yes, sir. Fine. Next lecture we'll be continuing with this, and mostly we'll complete with it and we'll solve problems also. Okay, students? Yes, sir. Okay. Harsh Pandey, Vedant bro. Very good, Vedant. Harsh, तू ही text कर रहा है, naughty boy. Okay, students. Okay. Next lecture will continue further, and please do learn